Hello students, very good morning. Today we are going to start your very first chapter, okay, of your standard 6 very first chapter, Introduction to Computer, page number 3. In that very first and very basic is what is the computer. So what is the computer? Computer is an electronic machine. We know that, right? And again here I have written it's made up of devices. Okay, and that devices are used for input, process, storage and output. ये आप लोग पढ़ चुके हो. Once again I am repeating, computer is an electronic machine. Okay, and it is made up of devices for used for input, process, storage, output. Once again, input, process, storage, output. Next you are having features of a computer. Next you are having features of a computer. You are having now features of a computer. अगर कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में बात करें तो क्या क्या हो सकता है? उसकी स्पीड, उसका टायरलेसनेस, उसकी वर्सिटैलिटी. ओके, ये सारी चीजें अब हम स्टडी करेंगे. सो वेरी फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकेंड इज टायरलेसनेस, third one is accuracy, fourth is repetitiveness, fifth is storage, and sixth is versatility. Now on your page number 3, first I'll read out that paragraph that's given below. Figures or features of a computer. The word computer is derived from the word to compute. ये तो हमें भी पता है, जो computer word है वो किससे derive किया गया है? कौन से word से? To compute से, which means to calculate. Initially computers were used only to perform big and complex calculation. Initially अगर हम देखने जाएं तो कंप्यूटर पहले बड़े बड़े कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो थे सिर्फ उसी के लिए यूज किए जाते थे. बट टुडे अ कंप्यूटर इज यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ. ये हमें भी पता है, कंप्यूटर इज यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस. ओके, वी पीपल आर ऑल्सो यूजिंग इट नाउ इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो. Okay, with the help of a computer, we can perform complex calculations very quickly and accurately. मतलब आपको आंसर इतने accurately मिलेगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा. A computer can store and recall a large amount of data. Now, computer can store large amount of data और जब हमें चाहिए वो डेटा तो हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं. और जो सारा डेटा कहाँ सेव होता है? मेमोरी में. Understood? So what very first one is given? The word computer is derived from the word to compute. To compute means is to calculate, right? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ is to. अभी सबसे पहले क्या है? It is derived from word to compute and to compute is to calculate, right? ये बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी कर लेता है. इनिशियली अगर हम देखने जाए तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए ही सिर्फ कंप्यूटर की यूज की जाती थी, राइट? एंड नाउ इफ विल सी द कंप्यूटर इज यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ, ओके, एंड टू परफॉर्म वेरी बिग कैलकुलेशंस इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो. वेरएज अगर अभी हम कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशंस करना चाहे वो जल्दी करेगा एंड एक्यूरेटली करेगा, क्विकली एंड एक्यूरेटली, राइट? उसके बाद यहाँ पे हमने स्टडी किया अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर बड़े बड़े जो डेटा है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं. जब हमें चाहिए तब हम उस डेटा को रिकॉल भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस वन वॉज द वेरी बेसिक. वी वर स्टडिंग ऑन द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब अगर आपको बोले राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, ओके, सो देयर आर total 6 features according to your first chapter. First is speed, okay, tirelessness, accuracy, repetitiveness, storage, and next is versatility. Once again I am reading: speed, tirelessness, accuracy, repetitiveness, next is storage, and next is versatility. Whereas first if I talk about the speed, तो इसके speed के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है? A computer has a fantastic speed of performing any task. कंप्यूटर के पास it has a I can say a fantastic task. मतलब वो जल्दी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग अ फैंटास्टिक टास्क. इट कैन
इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी जल्दी करेगा एंड एक्यूरेटली करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 125 by 7, अगर आपको कहा जाता है 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, you will need a few minutes to solve it, right? But computer will do that in seconds, okay? And that answer could even be wrong. अब आप जो कर रहे हो सॉल्व, वो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, but a computer will give you the answer in a few seconds and it will give you the correct answer in a few seconds. Remember, वो few second में आंसर तो देगा लेकिन आपको करेक्ट आंसर देगा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा स्टडी किया? स्पीड में क्या स्टडी किया हम लोगों ने, किस तरह वो जल्दी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हैं तो क्विकली एंड एक्यूरेटली करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को, अगर आप लोगों को बोल दूं कि 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यू विल टेक सम टाइम, ठीक है, आप लोग को फ्यू मिनट्स तो लगेंगे वो सॉल्व करने के लिए एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका आंसर रॉन्ग आए। बट वेरेस इफ आई एम आस्किंग कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर में इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे इसका आंसर फ्यू मिनट्स में मिलेगा एंड इट विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ टायरलेसनेस। नाउ सी, अगर हमें कुछ काम करने बोला जाए तो हम कंटिन्यूसली उस काम को नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद। वेरेस अगर हम कंप्यूटर को बोलते जाए कितने भी कैलकुलेशंस करने, क्या कंप्यूटर थकता है? नो। नाउ टायरलेसनेस, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और कभी भी बोर होता नहीं है। इट कैन डू द सेम वर्क रेपिटेडली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो एक ही काम लंबे समय तक कर सकता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके वो कंटिन्यूसली वो काम कर सकता है। सो दैट टेंड्स टू बी टायरलेसनेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्यूरेसी। वी आर गोइंग टू टॉक नाउ अबाउट एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम कर सकता है बिना मिस्टेक किए, okay. A computer make mistakes only when wrong data or instructions are entered into it. कंप्यूटर मिस्टेक कब करेगा? या तो उसमें हम गलत डेटा इनपुट करेंगे या गलत इंस्ट्रक्शन दिया तभी ही कंप्यूटर गलत करेगा उस हमारे सम को। अगर मैं कुछ उसमें फॉर्मूला जो देना चाहिए वो ना दे रही हूँ, उसके जगह पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरा आंसर वहां पे रॉन्ग आएगा, okay. Thus we can say that accuracy and reliability are the most important features of the computer. So we can say accuracy and reliability. Accuracy and reliability are the most important features of a computer. Clear? Next now we are going to see about repetitiveness. We are going to see about repetitiveness. When you do the same work repeatedly for a long time, you not only get bored and tired but also your speed of doing the work reduces gradually. जब आप एक ही काम, अभी यहाँ पे रेपिटेटिवनेस की बात की, जब आपको एक ही काम अगर मैं करने के लिए कहूँ, अगर हम एक ही काम करते जाए, राइट, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, वही काम कंप्लीट करने के लिए हमारा जो जितना टाइम पहले लगा था उससे थोड़ा कम टाइम लगता है, राइट, वो प्रैक्टिस में आ जाता है वही काम हमारे। बट अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली डू रेपिटेटिव वर्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। बट कंप्यूटर को अगर कुछ काम वही काम करने बोला जाए तो वो उतने ही स्पीड में करेगा और उतने ही एक्यूरेट वे में करेगा। क्लियर? सो दैट वी हैव डील्ड नाउ विद रेपिटेटिवनेस। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद स्टोरेज, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी टेक्स्ट और इवन पिक्चर्स। अब ये जो है, ये जो भी अगर हम इंफॉर्मेशन या डेटा बोले तो वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है या हमारा पिक्चर भी हो सकता है। इट कैन स्टोर 1000 ऑफ पेजेस ऑफ डेटा। कोई भी डेटा है तो उसके 1000 ऑफ पेजेस भी कंप्यूटर सेव कर सकता है, okay. You can retrieve this data whenever you need it. Retrieve is to you can get back that information whenever you need it. Once you have saved it and whenever you need to retrieve it, you people can retrieve it. Means you people can get back that information according to your need. Clear? Once if you have saved, make that sure. After that you are having versatility. Next you are having that is storage is done and now you are having versatility. Now as you already know, a computer is used in school,
ऑफिसेस, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल एंड इन मेनी अदर फील्ड। अगर इसकी वर्सिटैलिटी की बात करें तो ये ना ही सिर्फ स्कूल में, बैंक्स में काम आ रहा है, रेलवे स्टेशन में काम आ रहा है, हॉस्पिटल्स में काम आ रहा है, और यहाँ जो सारी फील्ड्स मेंटेन यहाँ पे बताई गई है, मेंशन की गई है, सो दैट टेंड्स टू बी दी वर्सिटैलिटी ऑफ अ computer. Versatility of a computer. So once again, what are the features of a computer? That is speed, tirelessness, accuracy, repetitiveness, storage, versatility. Once again, speed, S-P-E-E-D, speed. Next is tirelessness, T-I-R-E-L-E-S-S-N-E-S-S, that is tirelessness. Next is accuracy, A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Next is repetitiveness, R-E-P-E-T-I-T-I-V-E-N-E-S-S, so that is repetitiveness. Next is storage, S-T-O-R-A-G-E, storage. Next is versatility, so V-E-R-S versatility, so that tends to be versatility. And अगर मैं बोलूँ सबसे important feature अगर कंप्यूटर का है तो वो कौन सा है? That is accuracy and reliability. Accuracy and reliability. Clear? So here we have dealt with the features of a computer. Okay, then you are having in this age of electronic communication, computers are used to share or exchange information. अगर इस अभी के इसमें बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जब हम बात करेंगे तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी काम आता है, इवन एक्सचेंज करने के लिए भी काम आता है, शेयर करने एंड एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ वन अनदर टू फॉर्म अ नेटवर्क. नाउ व्हाट इट्स गिवन, कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज. ओके, वो एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट्स नेटवर्क. ओके, टू फॉर्म अ नेटवर्क, क्या बनता है वो? नेटवर्क. दिस वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, और इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट. वी कॉल दैट एज इंटरनेट. ओके, INTERNET. नेक्स्ट, ईमेल, that is electronic mail. Email is electronic mail is one of the biggest advantages of the internet. अगर इंटरनेट की अगर सबसे बड़े एडवांटेज की बात की जाए, so that tends to be email. Next, it is used to send messages or information to computer users across cities or countries in a few seconds. अब ये जो email है, वया email हम कुछ ही सेकेंड्स में अगर हम बोले तो किसी भी सिटीज में या कंट्रीज में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, सो दैट्स वेरी इजी टू सेंड अ मैसेज. ओके, टू मैसेज और इन्फॉर्मेशन टू एनी सिटीज और कंट्रीज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. ओके, सो ये सबसे बड़ा पार्ट का एडवांटेज हम देखें इंटरनेट का, सो दैट टेंड्स टू बी ईमेल. दैट टेंड्स टू बी ईमेल. इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. Now you are having advantages of a computer. Okay, and that's page number 4. First one is greater efficiency, better services, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. अगर ग्रेटर एफिशिएंसी मतलब उसके फायदे अगर हम देखने जाएं, उसकी सेवाएं देखने जाए, सर्विसेज में अगर कहूं तो एजुकेशन यानी हमारी शिक्षा के फील्ड में, या एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की फील्ड में अगर हम देखने जाए तो. ओके, सो वेरी फर्स्ट वन इज ग्रेटर एफिशिएंसी. फर्स्ट वन इज ग्रेटर एफिशिएंसी, राइट. नेक्स्ट इज बेटर सर्विसेज. Third is education. Next is entertainment. Okay, so very first we are going to deal with that is greater efficiency. We are going to deal with that is greater efficiency. Computers help people do their work more efficiently. Computer
हम पीपल को किस तरह हेल्प करते हैं, हमारा जो काम है वो अच्छी एफिशिएंटली हम कर ले उसे। फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन अकाउंट। एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएं तो ऑफिसेस में कंप्यूटर क्यों हेल्प होता है, सबसे पहली बात तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए, सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए एटसेट्रा। अगर हम स्कूल में बोले तो वो हमारा क्या होता है, सारी फीस रिकॉर्ड रखता है। ओके, देन एवरीथिंग, जो आप एडमिशन फॉर्म भी अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो आपके सारे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेंगे, राइट। So, ये सारी जो बात आती है किस में आती है, एफिशिएंसी में। ऑल द वर्क इज डन एक्यूरेटली इन अ शॉर्ट टाइम। सारा जो वर्क है वो एक्यूरेटली किया जाता है, इट्स डन एक्यूरेटली इन शॉर्ट टाइम। Clear? Next we are going to deal with that is better services. That is better services with the use of computers at railway stations and airports. Reservation of tickets has become easier. अगर कंप्यूटर का यूज हम देखें, रेलवे स्टेशन में देख लो या आप एयरपोर्ट पे देख लो, जो हमारा रिजर्वेशन करने का जो अभी तरीका हो गया है, जो रिजर्वेशन हो गए इन सब टिकट्स का जो हम रिजर्वेशन करते हैं, ये इजियर हो गया है, राइट। इन बैंक्स कंप्यूटर आर यूज टू कीप अकाउंट्स ऑफ डिपोजिटर एंड प्रोवाइड देम क्विक सर्विसेज। अगर बैंक में देखने जाएं तो कंप्यूटर क्यों यूज होता है, वो जो भी अकाउंट होल्डर है उसके जो भी अकाउंट होल्डर है उसके डिपोजिटर के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए काम आता है, राइट। जल्दी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है, राइट। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस हैव रिड्यूस्ड द वर्कलोड। इट्स ट्रू, अगर हम देखने जाएं तो हॉस्पिटल में देखो, आप होटल्स में देखो, ऑफिसेस में देखो, एंड बहुत सारी अलग अलग जगह है जहाँ पे कंप्यूटर की वजह से हमारा वर्कलोड काफी कम हो गया है। एंड ऑल्सो गिवन बेटर सर्विसेज टू पीपल, एंड इसी के वजह से पीपल को बेटर सर्विसेज भी मिल रही है। सो दैट कम्स एंड डील्स विद बेटर सर्विसेज। ओके, फर्स्ट वी हैव डील विद बेटर एफिशिएंसी, हमने बात की, right? Next we deal with better services. Now we are going to deal with that is education. किसके बारे में बात करेंगे हम, एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है। कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमें पता है कंप्यूटर स्कूल में यूज होता है, कहाँ पे होता है, कॉलेजेस में होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी यूज होता है। टू टीच ऑल सब्जेक्ट, सारी सब्जेक्ट सिखाने के लिए। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नॉट ओनली इजी एंड क्विकली बट ग्रेट फन टू। अगर आप देखने जाओ कंप्यूटर के साथ अगर आप बहुत सारी चीजें अगर सीखने जाते हो, ठीक है, तो आप लर्निंग तो आपकी इजी हो ही रही है बट आपके साथ फन भी होता है। यू कैन सी वेरियस एनिमेशंस विच आई डन, if done then it gives a great fun to the student or the child who is learning from the computer. Clear? So that tends to be for the education. Now we are going to deal with entertainment. Entertainment में हम movies वगैरह की भी बात कर सकते हैं, music की बात कर सकते हैं, videos and all. So that deals with entertainment now. Computers are used to listen to music, okay, watch movies, कार्टून्स एंड इवन प्ले गेम्स। सो दैट इज गेम खेलने के लिए भी काम आता है, कार्टून देखने के लिए काम आएगा, मूवी देखने के लिए काम आएगा, और गाने सुनने के लिए भी कंप्यूटर काम आता है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू कंपोज म्यूजिक। कंप्यूटर म्यूजिक कंपोज करने के लिए भी काम आता है। बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर है, अगर हम देखने जाए तो वीडियो ट्रिमिंग के लिए भी काम आता है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी काम आता है, फिल्म एडिटिंग के लिए भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दैट टेंड्स टू बी इन एंटरटेनमेंट। ओके, फर्स्ट हमने स्टडी किया ग्रेटर एफिशिएंसी, देन बेटर सर्विसेज, एजुकेशन, एंड देन वी डील्ड विथ एंटरटेनमेंट। क्लियर? वंस अगेन कौन सा स्टडी किया हम लोगों ने, ग्रेटर एफिशिएंसी स्टडी की, ठीक है, फिर किया बेटर सर्विसेज, उसके बाद हमने किया एजुकेशन, एंड नेक्स्ट वी डील्ड विथ एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री देखने जाए तो कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज इन बिल्डिंग अ कंप्यूटर। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी जो देखने जाए कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए, कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल जनरेशन। कंप्यूटर जो है ना वो सेवरल जनरेशन में डिवाइड किए गए हैं। लेट अस ब्रीफली लर्न अबाउट द डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन। अब हम ब्रीफली लर्न करेंगे कंप्यूटर के एक एक जनरेशन के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहला था एबेकस, एबेकस के बाद था नेपियर बोन्स और वी कैन से स्लाइड रूल। दूसरा कौन सा था, स्लाइड रूल, ठीक है। थर्ड वॉज पैस्केलाइन, थर्ड वन वॉज पैस्केलाइन। फोर्थ था एनालिटिकल इंजीन, एनालिटिकल इंजीन, एंड फिफ्थ वन वॉज पंच्ड कार्ड्स, दैट वॉज पंच्ड कार्ड्स। सिक्स्थ वॉज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940s to 19
50s, उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फिर आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, देन यू आर हैविंग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड ऑल। ओके, सो फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एबेकस के बारे में। इफ यू पीपल हैव गॉन टू द एबेकस क्लास, यू पीपल मस्ट बी वेल नोन अबाउट द एबेकस का जो बोर्ड होता है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। इट सीम्स समथिंग लाइक दिस, इट्स गिवन ऑन योर पेज नंबर 4, सी हियर। Okay, now first one we are going to study, that is about abacus. History of computers, very first one is abacus. ABACUS. Very first one is ABACUS. Clear? Now, thousands of years ago, man didn't have to do many complex calculations. अगर थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो हम देखने जाएं तो हम मैंस को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने पड़ते नहीं थे। प्रिमिटिव मैन यूज्ड फिंगर्स। जो प्रिमिटिव मैन्स थे जो पहले के, वो फिंगर्स यूज करते थे, या तो उनका टो यूज करते थे, या तो पेबल्स यानी स्टोन के जो पेबल्स होते वो यूज करते थे काउंटिंग के लिए। बट व्हेन मैन स्टार्टेड ट्रेडिंग, जब मैन ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, he felt the need to use various mathematical operations like, लेकिन जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तब मैन को ऐसा फील होने लग गया कि उसे अब वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने चाहिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, राइट। टू डू सच कैलकुलेशन विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, और उतने सारे कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करने के लिए अबाउट 5000 years ago, about 5000 years ago, the first calculating device known as abacus was invented in China. Abacus was invented in China. It was invented in China before 5000 years, or I can say 5000 years ago. ठीक है, सो व्हाट्स गिवन हियर, टू डू सच कैलकुलेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो सारी कैलकुलेशन थी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करने के लिए 5000 साल पहले द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वाज एबेकस। एबेकस इन्वेंट किया था किसने? चाइना ने। हु इन्वेंटेड इट? चाइना। An abacus consists of a row of wires fixed on a wooden frame. एक वुडन फ्रेम है जहां पे एक रो फिक्स किया जाता है, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। ओके, द वायर्स हैव मल्टी कलर बीड्स स्ट्रॉन्ग ऑन देम, और जो वायर होते हैं उसमें मल्टी कलर के बीड्स होते हैं। सिंपल कैलकुलेशंस वेर डन वेरी क्विकली बाय स्लाइडिंग द बीड्स अप एंड डाउन ऑन द वायर्स। जो यू नो पीपल, इफ यू पीपल हैव वेंट टू एबेकस क्लास, जो वो बीड्स होती है वो उनको इतनी याद हो जाती है कि दे पीपल जस्ट डू विद देयर हैंड्स। ओके, सो जो सिंपल कैलकुलेशन होते हैं तो वो उसी बीट से हो जाते हैं। सून द एबेकस बिगेन टू बी यूज्ड